See, good morning once again. So, today I will start the first chapter, Evolution of the Accounting and Basic Accounting Terms. So, the topic is Basic Accounting Terms. 11C. Topic is Basic Accounting Terms. Basic accounting terms. There are certain basic accounting terms are daily used in business world. There, basic accounting term means daily used in business world. It means daily sale basis, daily purchases, and daily payments and receipts. Before recording the transaction in the books, it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting. These basic terms are called accounting terminology. What is accounting terminology? The first point is business transaction. A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. It means business transaction means daily transaction. It means daily purchases, daily sale, daily cash receipt, daily expenses paid. Clear? So whenever any business transactions take place, it results in a change in the values of some assets and liabilities or capital. You know capital. What is the meaning of capital? The amount which we invested in the business. ऐसा पैसा जो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है? कैपिटल. ठीक. So the chief features of transactions are it involves an economic activity. For the example, when goods are purchased and sold, when goods are purchased or sold in cash, when goods are purchase first and when goods are sold, ठीक है, in cash. यानी suppose when goods are purchased in cash, तो हम लोग क्या करेंगे जब परचेज आता है गुड्स, तो हम किसी भी दुकान पे किसी भी शॉप पे अगर परचेज करने जाते हैं तो बस गुड्स आएगा और बदले में क्या जाएगा? पैसा है. So what comes in? Purchase goods comes in, and what goes out? Cash goes out. So it is an economic activity. Next thing, when goods are sold in cash. Sold in cash का मतलब है अगर हम किसी goods को अगर हम sold करते हैं, बेचने का काम करते हैं, तो हमारे पास cash comes in, cash आ रहा है और बदले में क्या जाएगा? Goods. What goes out? Goods goes out. Clear? So now the next thing, when goods are purchased or sold for cash or on credit means udhar, or when salaries are paid to the employees, or when interest is paid on a money borrowed from the bank. It means interest paid money borrowed from the bank. अगर हम किसी बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बदले में बैंक हमसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है. ठीक है. So next thing, a business transaction take place. सोशल एक्टिविटीज़ आर नॉट, यानी ये सारी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा. रिकॉर्डिंग कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलना है, यानी हम सोल्ड भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, और एसेट्स को भी परचेज किया, गुड्स को भी सोल्ड किया. सारी चीज़ों में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइबिलिटी स्टैंड होगी और एसेट्स बढ़ेगी हमारी. ठीक. सो social activities are not considered as transaction. For example, if X purchase a gift of his friend, अगर कोई बंदा Mr. X, name Mr. X, purchase a gift for his friend, अगर कोई बंदा Mr. X है जो गिफ्ट परचेज कर रहा है अपने फ्रेंड के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज वो गिफ्ट में दे रहा है उस पैसे को. और जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? when goods are purchased in cash, हमारे पास से गुड्स जाएगा और बदले में क्या आएगा? कैश आएगा. तो बदले में कैश आ रहा है ना, तो इस चीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन कैश, परचेज करोगे तो गुड्स आएगा, बदले में पैसा जाएगा.
When goods are sold in cash, it means कि हमारे पास पैसा आएगा और बदले में क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। पैसा तो टर्म हो रहा है ना, पैसा एक तरीके से परचेज कर रहा है तो जा रहा है, सेल कर रहा है तो आ रहा है। कैश गोज आउट, कैश कम्स इन। एट द टाइम ऑफ सेल कैश कम्स इन, एट द टाइम ऑफ परचेज कैश गोज आउट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसको हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं परचेज और सेल के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट थिंग कि अगर हमारे पास कोई परचेज कोई गुड्स हमने परचेज किया, सपोज कोई गिफ्ट परचेज किया बदले में, सपोज मिस्टर एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। अगर एक्स परचेज कर रहा है कोई गिफ्ट, ठीक है, तो हमको वो गिफ्ट, उससे हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट Mr. X purchase a gift for his friend, तो it is non-economic activity, यानी वो economic activity नहीं। ठीक, one more important, it will be considered as a transaction because it's a social engagement। ठीक है, next thing, transaction may be classified into two ways. First one external transaction and second one internal transaction। External transaction are those which involves economic activities between two independent business entities such as the purchase or sale of goods। Next, internal transaction are those economic activities that take place entirely within one business entity such as a depreciation charge or fixed assets। Suppose depreciation charge, what is depreciation? डेप्रिसिएशन सपोज करो internal transaction are those economic activities that take place entirely within one business entity and such as depreciation charge on fixed assets। internal transaction, ये क्या है इंटरनल ट्रांजैक्शन? सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी, लाइक फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर। ठीक है, तो दिस इज फिक्स एसेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर। मशीनरी सपोज हमारे पास फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। फिक्स एसेट्स में हम मशीनरी को अगर एक बार बिजनेस के लिए परचेज करते हैं तो हम बार बार उसको सोल्ड नहीं करते, एक बार परचेज किया उसी से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, सोल्ड, परचेज, ये सब। ठीक है, फर्नीचर जो हमारा ही है, दूसरे का नहीं, मशीनरी भी मेरी है, दूसरे की नहीं, तो क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग को, फर्नीचर को और मशीनरी को एक जगह से हम अपने ही पास रखेंगे और अपनी ही बिल्डिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि हम दूसरे को, तो हमारे लिए वो क्या होगी, फिक्स एसेट्स। कंप्यूटर भी मेरा, ये सारी चीज़ें मेरी हैं जिनकी वैल्यू, सपोज बिल्डिंग की, मशीनरी की वैल्यू थी 2 लाख, परचेज किया था, ये 3 लाख, बिल्डिंग को परचेज किया था 10 लाख, कंप्यूटर को परचेज किया था 20,000। सपोज इसको हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2018 में। ठीक है, सारे को हमने परचेज किया था 2018। ठीक है, एक साल दो और 2020 में ले जाके, यानी 1 अप्रैल 2020 में, आज की डेट में वैल्यू हम पूछेंगे, यानी पर जब खरीदा था तो उसकी वैल्यू थी 2 लाख, जब खरीदा था तो फर्नीचर की वैल्यू 3 लाख, जब बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख और कंप्यूटर की वैल्यू 20,000 जब खरीदा था तब। ठीक, कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2018। और हम आज की डेट में अगर हम डेप्रिसिएशन, आज की डेट में अगर हम बिल्डिंग को, मशीनरी को सोल्ड करेंगे तो क्या वैल्यू सेम रहेगी? अगर हम परचेज करते हैं बाइक को, ठीक है, सपोज स्प्लेंडर खरीदा हमने, तो स्प्लेंडर की वैल्यू होगी 50
60,000 आज की डेट में। आज से 1 साल बाद जब सोल्ड करने जाओगे तो 60,000 में नहीं बिकती, वो हो जाएगी शायद उसकी वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी 40,000। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी जो जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2018 में 2 लाख रुपीस थी, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। सो रिड्यूसिंग वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, it result in a change in the financial position of the firm. A change is the values of some assets and liabilities or capital. Now the next thing, the change must be capable of being expressed in terms of money. Loss of goods by fire or the loss due to a customer liability to pay our transaction, because the losses can be measured in the terms of money. However, when an efficient manager retires from the firm, the loss of the business may be quite large, but since it cannot be measured in terms of money, it will not be a business transaction. जहाँ मनी का ट्रांजेक्शन होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना, सो दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और नेक्स्ट थिंग, इवेंट। सपोज, फोर्थ पॉइंट, basic accounting stuffs in fourth point. Again I will repeat, the change must be capable of being expressed in terms of money, यानी जो changes होना चाहिए वो money के terms में होना चाहिए। Loss of goods by fire or the loss or to a customer's inability to pay our transaction, because the losses can be measured in terms of money. However, when an efficient manager retires from the firm, the most important point, when an efficient manager retires from the firm, the losses to the business may be quite large, but since it cannot be measured in terms of money. अगर कोई मैनेजर हो, वो रिटायर हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैश से रिलेटेड। ठीक है, तो जो कैश से रिलेटेड होगा इन द टर्म्स ऑफ मनी, इट विल नॉट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बट सिंस इट कैन नॉट बी मैनेज, द एफिशिएंट मैनेजर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, द लॉसेस टू द बिजनेस मे बी क्वाइट लार्ज, बट सिंस इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल नॉट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ थैंक यू क्लास।